بیٹا یہ موبائل پیچھے کرنا بیٹا. میڈم ایک تو یہ بھی کر دیجیے میڈم, یہ بھی ویسے پاس رکھ کہاں سے کریں جگہ ہی نہیں ہے. اس کے اندر اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں کیا ہے کہ وہ آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے ہیں. ہم رجسٹریشن کا پروسیس ہر دن ان کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. 250 کیسز ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں صرف اس موومنٹ کے لیے. باقی تو ڈیٹا وہ تو الگ کے پاس بھی ہے, مسنگ پرسنس کے پاس بھی ہے. تو ہمارے مطالبات سب کو پتہ ہے. ایک کیس جو CTD پر لگا ہے, صرف کئی پہلے ہمارے پاس ایک لسٹ وہ بھی ہے جو CTD نے ایکسٹرا کیے ہیں, وہ لسٹ بھی ہمارے پاس ہے, لیکن اس پر کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی گئی ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ ابھی بھی درجن بھر افراد اس موومنٹ کے دوران بھی ہماری جب ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے, اتنی بڑی موومنٹ آئی ہے تو اس پر بھی یہ لوگ رک نہیں رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی, اس کو کسی نے اکاؤنٹیبل نہیں کیا. جیسے کہ بورڈ نے اس کا نوٹس لیا جب آن میڈیا IG اور کے فواد جو ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا, غلط کیا کہ اور ابھی تک ہم سردی میں بیٹھے ہیں, ہمارے خلاف بیانات بھی آ رہے ہیں اور ہمیں ہر طرف سے بلیمز کا سامنا ہے. نسرین اظہر صاحبہ آ گئی ہے, شی از دا وائس چیئر آ جائیں. میڈیکل کیمپ بہرحال یہ آپ نے بتایا کہ 12 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں. نہیں, ابھی بلوچستان میں اٹھا لے گئے, تازہ اٹھائے گئے. یہ کہاں سے اٹھائے ہیں, اس کی کوئی ڈیٹیلز بالکل ہیں ہمارے پاس, اس کی بھی لسٹ ہے ہمارے پاس. وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اب کریں ہم اٹھائیں گے. اصل بات یہ سنجیدگی ہے ان کی کہ اتنا بڑا ایشو ہے, آپ دوسرے لوگوں کو ریا کرنے کے فرت اللہ بابر صاحب لانگ میں اور جو خاندان ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو بھی حراست دیا جا رہا ہے. ڈیرہ بکری سے کچھ خاندان ہمارے پاس آئے تھے, 2 دن وہ یہاں بیٹھے تھے, تیسرے دن وہ پاس آئے کہ اگر آپ یہاں سے نہیں آئیں گے تو ایک کیوس بنا دیا گیا ہے. جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ یہاں میڈیا کے سامنے بھی کر رہے ہیں, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی سنجیدگی نہیں ہے. ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل طور پر, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ صرف چند خاندانوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں, اس میں اوور آل کمیونٹی یہاں پر وزیرستان سے بھی لوگ آئے ہمارے ان لوگوں کو بھی حوصلہ ملا ہے ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے. کشمیر سے آ رہے ہیں لوگ, وہ بھی ہماری گورنمنٹ کی مطلب تعاون کر رہے ہیں, سالیڈیرٹی کر رہے ہیں. جو ہمارا بیانیہ ہے وہ ایک عوامی بیانیہ ہے, وہ ہر انسان جو ہے نا اس بیانیے کی تعریف کرتا ہے. لیکن وہ طبقہ جو اس ملک کو شاید کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی اس بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچے گا کہ اب یہ سلسلہ ایسی فیملیز ہیں کہ ہمیں ابھی پتہ چلا ہے, اکثر اوقات کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنس کا معاملہ, یہ جو لسٹیں دیتی ہیں ان کی لسٹیں کریکٹ ہوئی ہیں, لیکن ابھی یہاں پر ایسے فیملیز آئے ہیں کہ کسی کے گھر سے 6 لوگ لاپتہ ہیں. ابھی بھی ادھر ایک فیملی آئی ہے اور وہ پہلی دفعہ آئی ہے میڈیا کے سامنے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈر قائم کیا گیا تھا, خوف قائم کیا گیا تھا, اس کو جو ہے آج چلا گیا لائٹ کی وجہ سے مسعود کے پاس میں بھی ہے نا لائٹ, لوگ سے نکل کر وہ آ رہے ہیں,
हुकूमत भी इस पे संजीदा हो, बजाय इसके कि बार बार इस मसले को दबाने की, नंबर्स को आगे पीछे करने की, मिसिंग पर्सन्स के मसले को कोई कंट्रोवर्शियल मसला कहने की, इसको अंदरूनी मसला कहने की बजाय इस मसले को हल करें। अगर इतना ज़्यादा आपको इशू है इस मसले को करना क्या चाहते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी कि जब हम आप लोग घरों में आएंगे, पहुँचेंगे, हम थोड़ी संजीदगी दिखानी चाहिए, इस पे बात करने की जरूरत है। भाई साहब बात सुनो यार, उनकी बात सुनो यार। 2021 में भी हम लोग इसी तरह आए थे, हम बीचों पर बैठे थे, रास्ते में भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो गई, हमारे खवातीन को जो है घसीटा गया, फिर क्या हुआ, एक दफा दोबारा हम लोग आ गए ना। ये सिलसिला इस तरीके से खत्म नहीं होगा, इस बात को समझने की जरूरत है। मैडम ये एक माइक जो HRCP का डेलीगेशन आया है, ये वाला आपके साथ इजहार यकजहती, इसके इंडिविजुअल मेंबर्स यहाँ आते रहे हैं, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर ये पूरा डेलीगेशन आया है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने, ये आपकी कामयाबी है कि आप लोग टूटे नहीं हो, अभी तक आप खड़े हो डट के। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ इस बात, आपके तमाम ग्रुप को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपको तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आपका अज़्म और हौसला बरकरार है। और दूसरी बात यह है कि रियासत आप पर जबर करके आपकी आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन आपकी आवाज़ पाकिस्तान के दारुल में गूंज रही है, बल्कि पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भी आपकी आवाज़ सुनाई देती है। और ये एक स्मॉल अचीवमेंट नहीं है कि आप लोगों की आवाज़ पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत दुख है कि रियासत के बजाय इसके कि आपके साथ आकर आपके जख्मों पर मरहम रखें, उनके बयानात से ऐसा लग रहा है कि आपके जख्मों पर हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम दामे घर में सुख में जो कुछ भी हो सका, हम बलूचिस्तान में जो लोग लापता हो गए हैं और जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई है और जो डेथ स्क्वाड्स हैं, आपके मुतालबात तो यही है कि डेथ स्क्वाड्स को ख़त्म किया जाए, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को ख़त्म किया जाए, और जो जिनको लापता किया गया है उनको बाहर लाया जाए। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो आपके पास सख्त से सख्त कवानीन मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। इन मुतालबात से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान के तमाम लोग, मैं समझता हूँ, जो जमहूरियत में और रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, दे स्टैंड विद यू एंड दे विल ऑलवेज स्टैंड विद यू। और इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी होगी, जिस तरह आप लोगों ने साबित कदमी दिखाई है और जिस तरह आपने आवाज़ बुलंद की है। इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि आपकी आवाज़ को दबाया जाए, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी होगी। थैंक यू। मैं आप तमाम बच्चों का, बहनों का, माँओं का, बलूचिस्तान के बूढ़े दोस्तों, बुजुर्गों का, नौजवानों का तो सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और अपनी डिमांड जो है वो रियासत के सामने रखी। लेकिन रियासत जो है वो माँ का किरदार है। रियासत जो है वो शहरियों के हकूक़ की निगहबान होती है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ये रिवायत बन गई है कि लोग रियासत को एक जालिमाना रोल में देख रहे हैं कि ना लोगों के हकूक़ उनको मिल रहे हैं, ना आप लोग किस लिए आए हैं? आप तो सिर्फ इसलिए आए हैं ना कि जिन लोगों को आपने डिसअपीयर किया है उनके खिलाफ अगर कोई केस है तो सामने अदालतों में पेश करें। आप तो ये तो नहीं कह रहे कि आप उनको रिहा कर दें।
सामने लाना चाहिए, गुमशुदगी नहीं होनी चाहिए, आइन के ऊपर अमल होना चाहिए, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो लोग सवाल उठाएंगे, लोगों में नफरत फैलेगी और इस नफरत के नताइज जो है पाकिस्तानी अवाम भुगत चुकी है। इस पाकिस्तान में आपने लोगों को उनके हकूक नहीं दिए, लोगों ने आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी। तो ये रियासत की नाकामी थी ना कि मेजॉरिटी में होते हुए इस पाकिस्तान के लोग जो है वो हमसे अलहदा हो गए। हमने अपने लोगों को अपने से जुदा कर दिया। तो आप लोगों को मेरा सलाम है। PFUJ सहाफ़ी कम्युनिटी, यहाँ पे सारे दोस्त जो हैं वो आए हैं। PFUJ की तरफ से मैं हूँ, यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल भी आए हैं। तो हम लोग आपके साथ हैं, आपके काज को जस्ट काज समझते हैं और हम मुतालबा करते हैं रियासत से, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आपकी बात को सुना जाए और आपके मसाइल जो है बातचीत के ज़रिए जो है वो हल करें। अगर नहीं हल करेंगे तो इसका नुकसान जो है वो रियासत है। कौम ने आपकी आवाज़ सुनी और सबको सुनते उनको बात लगी। अब तो ये ऐसा जुर्म है, ये जुर्म है, मतलब कानून के बाहर ये एक चीज़ है कि आप किसी को गायब कर दें। तो अगर रियासत जुर्म कर रही है तो इसको जितनी भी मजम्मत करें, मेरा ख्याल है कि ये सारी तस्वीरें देख के इतना तो बेचारे आप लोगों के आप लोग सब जो गुजरे हो, जो पूरे ख़ानदान फिर माएँ बहनें बेटियाँ सब लोग भाई क्या गुजरी होगी, किस तरह गुजर रही है। और इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये हमारी लगता तो हमें ऐसा है कि ये हमारी रियासत जो है एक पॉलिसी की तरह से इस्तेमाल करती है इस जुर्म को, ख़त्म होना चाहिए और बिल्कुल हमारी अदालतें हैं हमें पेश करना चाहिए। हम आपके साथ यकजहती का इज़हार करने आए और आपको कहने आए कि पूरी कौम आपके साथ। देखिए जी, जो गुमशुदा जबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद का मसला है, ये मेरे ख्याल में एक नाकाम रियासत की अलामत है। जो रियासत चलती है, इदारे उसके चलते हैं, वो अपने इदारों से अदलिया होती है, इंतज़ामिया होती है, मुकर्रना होती है। यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए ना, अगवा करना तो जुर्म है, और अगर रियासती इदारे जो तनख्वाह इस बात की लेते हैं कि लोगों की हिफाजत करेंगे, अगर वो ये काम शुरू कर दें तो ये रियासत नाकाम रियासत कहलाएगी। और फिर क्या होगा? दूसरी बात यह है कि आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं, आपने इस मसले को न सिर्फ उठाया है बड़ी बहादुरी से, बल्कि जैसे आपने मुकाबला किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम भी उनके साथ बैठे थे। वहाँ हमने ये कहा कि इस्लामाबाद में आकर आप लोगों को अगवा किया, साथियों को अगवा किया गया, तो ये इस्लामाबाद ने आपके इल्जामात की तस्दीक कर दी। यानी ये पता चल गया कि अगवाकार कौन है, इसमें शक नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस बात का वक्त आ गया है। इलेक्शन भी ठीक है, जमहूरियत भी ठीक है, लेकिन जब तक जबरी अगवाशुदा अफराद की रिहाई की बात नहीं होती, कोई जमहूरियत नहीं है, कोई आइन नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है और इस मसले का हल का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद के आपके धरने के जवाब इनको ये देना चाहिए कि ये लीजिए, हम लोगों को रिहा करते हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं वो अदालतों में चले जाएंगे, जिनको जाना है वो जेल में चले जाएंगे, जो आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन जिन्होंने अगवा किए हैं, मेरा ख्याल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वक्त आ गया है कि जो इसको क्रिमिनलाइज किया जाए, इसको जुर्म करार दिया जाए और मुकदमे चलने चाहिए। हम कहते हैं हमारे लोगों पर मुकदमे चलाओ, जिनने अगवा किए उन पर मुकदमे चलाओ। मेरा ख्याल है इसका वक्त आ गया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ह्यूमन राइट्स कमीशन आपके साथ इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। बाबर साहब, एक आज काजी फाइज ईसा ने लापता अफराद का एक केस टेकअप किया है, तो क्या इसमें कोई पार्टी बनने का है बलूचिस्तान से जो लापता अफराद हैं? क्योंकि अभी उन्होंने केस एक टेकअप किया है एतजाज एहसन वाला लापता अफराद का।
तो इसमें पार्टी बनने का ताकि इनका भी हो जाए उसी में। लेकिन जो आप जिस केस का आपने जिक्र किया है उस केस की बुनियाद ये है कि लापता लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के मर्ज एरियाज में इंटरनल सेंटर्स में रखा गया है और इंटरनल सेंटर्स के खिलाफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है और हम उसमें पिटिशनर हैं और अफराज खटक साहब हैं मेरे साथ उसमें पिटिशनर हैं। अभी हमने दरख्वास्त एक और इसी हफ्ते दे रहे हैं कि उसकी जो सुनवाई है हियरिंग वो जल्द हो जाए क्योंकि गुज़श्ता 4 सालों से उस केस में कोई हियरिंग नहीं हुई। आपका सवाल अपनी जगह पर दुरुस्त है लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हैं। आखिरी बात मैं करना चाहती हूँ आपसे, हमारी विनती, आप जिस तरीके से यहाँ पे आई और आपने स्टेट का जबर जो है उसको फेस किया, आपको सलाम करते हैं। हम आपके साथ हैं, इन स्पिरिट हम आपके साथ हैं और ये भी हम अदालतों से तवक्कुआत रखते हैं कि जहाँ वो कहती हैं कि वो लाचार और आवाम के लिए जो अदालतें बनी थी उनको आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त काम करना चाहिए। उनकी बुनियादी हकूक़ जिसकी वो बात करती हैं, इश्यूज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, उनको वो लेनी चाहिए जिसके अंदर आपका जो मसला है वो सैर फहरिस्त है। और दूसरी बात ये कि हमने ये भी डिमांड किया है कि जो कमीशन बनाई गई पोस्ट डिसअपीयरेंसेस की वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, उसको डिसबैंड होना चाहिए। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इस वक्त जो भी हुकूमत है वो एक कमेटी तश्कील दी जाए जो आपको भी मुनासिब लगे और आपके साथ फिर और जो है मुज़ाकरात का जो अमल है वो शुरू होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ मुलाकात की, हम आपके साथ। थैंक यू। हम लोग आप लोगों के साथ माइक ले ले, माइक आप लोगों के सामने लाए। आप लोगों ने हिम्मत रखनी है, बहादुर लोग हैं और हम लोग आप लोगों के साथ। अल्लाह एक्सपोज करने में कुछ मदद करना। वैसे तो ये झूठ चीज़ है कि हम गिरफ्तार थे और माशाल्लाह से साहब ने कमेटी बना कर ये कहा कि कोई भी फर्द गिरफ्तार नहीं है, कोई औरत गिरफ्तार नहीं है।